velocity time graph. When we say velocity time graph, the y-axis represents velocity and this x-axis represents time. Now there are different cases that we will discuss here, so just pay attention. Suppose a body is moving with uniform velocity. A body is moving with uniform velocity. It simply means the velocity is neither increasing nor decreasing. At a certain point of time, you observe it is 30 km per hour, and after some time, you again observe you found 30 km per hour. Again, after some time, you found it is 30 km per hour. So velocity is uniform, it is not changing. When velocity is not changing, change in velocity will always be zero. And always you are finding that the velocity is same. So at this time, it is this much. At this time, it is this much. At this time, it is this much. What do you get? We get a straight line, horizontal straight line. When the velocity time graph is a horizontal straight line or a straight line parallel to time axis. Or a straight line parallel to time axis, right? Then we call acceleration is zero. In this case, this is a graph for uniform velocity and zero acceleration. Okay. So whenever the velocity time graph is parallel to time axis, whenever the velocity time graph is parallel to time axis, it represents uniform velocity or zero acceleration. Or it represents zero acceleration. Okay. That is the most important thing you have to remember about this. Second case is the body has started with certain velocity and it's now increasing its velocity continuously. The velocity continues to increase. Means at this point of time, velocity has found to be this much. Then after some time, found to be this much. And again after some time, found to be this much. And it is increasing. It is increasing. The velocity is increasing. So when velocity is increasing, the body is speeding up. It forms a rising line, which is velocity time graph. This is it. Rising line. When velocity time graph is a rising line, its velocity is continuously increasing. Okay, and it is a straight line. And it is a straight line. Means the body undergoes equal changes in velocity in equal intervals of time. Equal changes in velocity in equal intervals of time means uniform acceleration. It represents uniform acceleration. Okay, the rising line. The rising line in velocity time graph represents a uniform acceleration. It is a uniform acceleration.
here uniform velocity and zero acceleration. This is a uniform acceleration. The rising line. Line कैसी है? Straight line. Rising straight line. Okay. So this is important. In this graph, if I shift this line parallel to this here, what do you see? The angle here is less than 90 degrees. Angle here is less than 90 degrees. Slope, which we represent by m equal to tan theta. And because theta is less than 90 degrees, this is in first quadrant. And for in first quadrant, tan theta is positive. So slope of this line is positive. Slope of this line is positive. Therefore, acceleration is positive. So 0 is less than theta, is less than by 2, m is greater than 0, and therefore it is positive. Acceleration is positive. Acceleration means positive means body is speeding up. Right. Now, next case, when we have a falling line. Instead of rising line, we have a falling line. This means at this point of time, the velocity was this much. After some time, it has decreased to this much. After some time, it has decreased to this much. After some time, it has decreased to this much. Again, it is a straight line. Straight line means it is falling. Straight line. Okay, means uniform acceleration. Is a uniform acceleration, right? But now here we see that this angle theta is more than 90. So theta is more than pi by 2. When theta is more than pi by 2, it goes into the second quadrant. In second quadrant, tan theta is negative. So we say tan theta is less than 0. And less than 0 means slope is equal to slope is negative. Slope is negative. And therefore, acceleration is negative. Negative acceleration is called retardation. Negative acceleration is called retardation. It is also called deceleration. Deceleration और retardation ये दो वर्ड है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए यूज किए जाते हैं. नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस द बॉडी इज स्लोइंग डाउन. क्या मतलब है? बॉडी इज स्लोइंग स्लो. बॉडी स्लो कब होती है? जब रुकना हो, ब्रेक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, चढ़ाई आ जाए एकदम से तो बॉडी धीरे हो जाती है. तो जब भी बॉडी स्लो डाउन हो रही है उसको हम डिसेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं. और रिटार्डेशन डिसेलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन की खुद की वैल्यू नेगेटिव होगी. एक्सीलरेशन की खुद की वैल्यू नेगेटिव होगी. इस चीज का ध्यान रखें. तो कभी भी कैलकुलेशन में अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो रिटार्डेशन. या कोई सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे बॉडी स्लो होगी, ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे एक्सीलरेशन नेगेटिव ही होगा. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? बॉडी पहले ऊपर जाती है, रुकती है, रुकने के बाद फिर वापस नीचे आके गिरती है. तो जब वो ऊपर जा रही है तो स्लो होती जा रही है,
और स्लो हो के फिर रुकी, तो ये स्लो होने का जो प्रोसेस ये रिटार्डेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डिसेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। और किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ आप छोड़ रहे हो, सिंपली छोड़ रहे हो, तो वो एकदम से नीचे फॉल करना शुरू होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वो स्लो डाउन हो रही है तब वो नेगेटिव एक्सेलरेशन। बॉडी स्टार्ट हुई है, स्पीड अप हो रही है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डेस्टिनेशन आ गया है, अब रुकना है, ब्रेक लगा दी है, स्लो डाउन हो रही है तो डिसेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के ऊपर बहुत क्लियर आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं, कोई भी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं, ऐसे दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ्स में आपसे पूछा जाता है, ऐसे ग्राफ में पूछ लिया जाता है कि बताओ मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ होगी और मिनिमम एक्सीलरेशन कहाँ होगी। मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एक्सीलरेशन के tan थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो कहाँ पे ग्राफ का स्लोप स्टीप है, शार्प है, ठीक है, वो चीज हमें देखना होगा। तो यहाँ पे देख रही है ग्राफ का स्लोप, यहाँ पे स्टीप है, ये एंगल जो है 90 के नजदीक पहुंचा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू जब अगर ये 90 हो जाता तो tan 90 तो इन्फिनिटी होता है, अगर ये 90 से थोड़ा कम तो इसका मतलब tan ऑफ दिस थीटा इज हैविंग हाईएस्ट वैल्यू। तो इस पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन है बॉडी का वो मैक्सिमम होगा। मिनिमम एक्सीलरेशन कब होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे टेंजेंट हमारा ये पॉजिटिव है, सॉरी इस टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल है, राइट। इस पॉइंट पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ना एक्सेलरेशन होगी ना डिसेलरेशन होगी, या जीरो एक्सेलरेशन होगी। ये वाले पॉइंट पे भी जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ होगी, कौन से पोर्शन के अंदर, ग्राफ की है ए बी सी डी, ग्राफ के किस पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ग्राफ के पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ए से बी सेगमेंट, ए बी एंड सी डी, ये भी राइज, ये जो कर्व के पार्ट है ए बी और सी डी, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन फॉलोइंग लाइन, तो बी सी, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज बी, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला पार्ट है। इस प्रकार से स्लोप से आप एक्सेलरेशन का आइडिया लेंगे कि राइजिंग है, जहां भी कर्व राइजिंग है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, जहां भी कर्व फॉलिंग है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जहां कर्व हॉरिजॉन्टल हो गया जीरो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा हॉरिजॉन्टल पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टडी करो। सो हाउ मच एक्सेलरेशन इज in first 10 seconds, how much acceleration in interval 8 0 to 10 सेकेंड, दूसरा 20 to 30 सेकेंड, और तीसरा 40 to 40 सेकेंड। ये अलग अलग तीन पार्ट्स में हमें पूछा है कि एक्सीलरेशन निकालना है, ये बताना है। तो हाउ डू वी डू दिस, वी अप्लाई सिंपल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, दैट इज a is equal to b minus upon। अब a b 0 से 10 इस ड्यूरेशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी कब थी, 10 सेकंड पे फाइनल थी, तो वो b वाली वेलोसिटी थी। तो b वाली वेलोसिटी कितनी है, ये
30. So we use 30 here minus initial starting velocity कितनी थी 15. So we use 15 here. Time duration कितना है 0 to 10 means 10 second. We use 10 here and this is 15 upon 10, that is 1.5 meters per second square. So that is first part. This is my first part. Now look into the second part. Second part के लिए acceleration कौन सा इंटरवल दिया है 20 से 30. तो 30 पे फाइनल होगी 20 पे इनिशियल होगी 30 पे कितनी थी फाइनल सी पे ये 30 था. So this is 30. 20 इनिशियल होगी 20 तो 20 पे कितनी थी 20 पे भी 30 थी. So this is 30. टाइम इंटरवल कितना है 10 सेकंड. So 10 सेकंड. So this comes out to be 0. Means zero acceleration, no acceleration. So in this segment, BC segment, it is uniform velocity. Okay, so no acceleration. Right? What will be the third? Third part में क्या होगा? Third part में 40 से 50 के बीच में हमें देखना है. अब 40 पर कितनी है वेलोसिटी है? ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये हो गया 50 और 50 पे कितनी है 50 पे 0 होगी. So here acceleration final is 0 and initial is 15 upon time interval is 10. So this acceleration is minus 1.5 meter per second square. So this is negative acceleration, therefore this is retardation. This is retardation. तो ग्राफ से हम इस प्रकार से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, दिस इज क्लियर, समझ में आया? यस सर. ठीक है, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और वो इसी स्पीड से 30 सेकंड लगातार चली. इसी स्पीड से 30 सेकंड लगातार चली. ठीक है, यूनिफॉर्म velocity is 20 meter per second and time is 30 seconds. Now we know that velocity is displacement on time. और displacement क्या होता है? Displacement is velocity into time. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वेलोसिटी जो है यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं अभी, इस पे ध्यान दें. वेलोसिटी, अब ये फिगर मैंने कैसी बनाई है, ये शेप कैसी दिख रही है, रेक्टेंगल की शेप दिख रही है. इस रेक्टेंगल की शेप के अंदर ये वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज ब्रेथ, टाइम क्या है लेंथ. ठीक है, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर अगर हम लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट एरिया. ठीक है, मींस एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये. वेलोसिटी अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ represents displacement. अगर आपको सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिएगा और बोले बताओ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस ड्यूरेशन के अंदर, आपको सिंपल इसका एरिया निकालना है, वो दैट इज डिस्प्लेसमेंट. सीधा निकाल के आपको पता है 20 into 30 कितना होगा 600 होगा. 600 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट आंसर. ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमेशा ध्यान. अब ये तो केस था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो हमने इस प्रकार से निकाल लिया. अगर ये इस प्रकार का नहीं होता, मान लो ऐसा होता, बॉडी स्टार्ट हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम वेलोसिटी इसने एक्वायर कर ली, मान लो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर कर ली, और
अचानक से उसको ध्यान आ गया कि अरे ये चीज मैं लेना भूल गया और उसने ब्रेक लगा, ठीक है, ब्रेक लगा के एकदम से स्टार्ट हुआ था, स्पीड अप हो रहा था, 30 सेकंड को फिर ध्यान आ गया, एकदम से ब्रेक लगा के उसने रोक दिया। तो 40 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, इन 40 seconds how much displacement or how much distance he has covered, how much he got displaced from the starting point। अब आपको क्या करना है, आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ये कैसी शेप दिख रही है आपको, ट्रायंगल, ये ट्रायंगुलर शेप है, और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो सिंपल कांसेप्ट यूज करना है आपको, एरिया निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मोशन बेस इनटू हाइट, पहले रेक्टेंगल था तो हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ का कांसेप्ट लगाया था। अब ये चूंकि ट्रायंगुलर दिख रहा है, इसमें हम क्या लगा रहे हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ इनटू बेस कितना है 40, हाइट कितनी है इसकी 30, so that is again 600 meter, 20 into 30, 600 meter। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। So the body started by 0 and then accelerated upon the acquired speed of 20 meter per second, then continued to move with the same velocity 20 meter per second up to 30 seconds, and after that it slowed down uniformly and stopped after 40 seconds। ठीक है, अब 50 सेकंड पे वो रुक गई। तो इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना, डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हाट इज दिस शेप, गिवन दिस शेप, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम, यस सर। इसको ट्रेपेजियम कहते हैं, और ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट मांगा तो ट्रेपेजियम का एरिया देना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मोशन इज, क्या होता है ट्रेपेजियम का एरिया, हाफ इनटू सम ऑफ साइड्स इनटू हाइट, हाइट और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, राइट। ये सम ऑफ साइड्स कौन सी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, चारों साइड नहीं बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और ये हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। सो दिस इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब क्या हो गया, ये कितनी है, हाउ मच इज दिस, दिस इज 30 minus 10, कितना हो गया ये 20, प्लस दूसरी साइड यहाँ से यहाँ तक कितना है, इनटू ये कितना है, डिस्टेंस इज बिटवीन पैरेलल साइड्स is 20, so this is 20, ठीक है। so 2 से कट कर देते हैं 10, और ये हो गया 70, 70 into 10 is 700 मीटर। हमने सिंपल निकाल लिया, हमें फॉर्मूला पता, 700 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट इसको, इस प्रकार से हमने इसको कैलकुलेट कर। तो जब सिचुएशन ऐसी होती है, ठीक है, तो हम सिंपल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो हम अप्लाई करके निकाल लेते हैं, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाता है। But there are situations when it is not standard. The velocity of the body is given by 3t square. Velocity is changing as per the time, and the rule is this. The velocity of t square के हिसाब से चेंज हो रही है, तो कैसी शेप देगा ये, ऐसी शेप देगा बढ़ती हुई, पैराबोलिक शेप कहलाएगा। तो now the shape is like, the shape is like this, और इसमें पूछा गया बताओ 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 3 में, 4 में, 5 में। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, तो 0 ही हो गया, 0 1 2 3 4, क्या करेंगे यहाँ से खोले जाएंगे, यहाँ मिल गया, इसको यहाँ से जोड़ दो, राइट।
Now what is the area under this curve? Area under this curve is this. ठीक है, अब ये तो कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है जिसका हमें फार्मूला पता हो एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? अब ये वो जगह है जहां पे हम इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। इंटीग्रेशन हेल्प्स अस टू फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व, और वो इंटीग्रेशन कैसे हेल्प करता है, ठीक है। अगर ये f ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम व्हिच डिफाइंस वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया निकालेंगे, ये छोटा सा एलिमेंटल एरिया, ठीक है। हमेशा ऐसे ही सोचना है। तो ये इतना छोटा टाइम इंटरवल लेते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी लगभग बराबर रहती है वेलोसिटी चेंज नहीं। अगर इस छोटे से ड्यूरेशन के लिए वेलोसिटी ये वाली v है और ये छोटा सा टाइम इंटरवल जो है ये dt है, तो ये छोटा एलिमेंटल एरिया जो है ये d है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, ये वाली वेलोसिटी इनटू ये वाला टाइम, ठीक है। और ये वाली वेलोसिटी कितनी है, ये वाली जो वेलोसिटी है वो है 3, तो हम इस फंक्शन की जगह 3t स्क्वायर ऐसे, इस छोटे से एलिमेंटल एरिया का हमें जो मान है वो हम 3t स्क्वायर इनटू dt। हमें जो टोटल एरिया चाहिए, हमें टोटल एरिया कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। पहले 4 सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो पहले 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे टाइम को। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ये तो हो जाएगा एरिया, और 3 टी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, टी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा t2 + 1 अपॉन 2 + 1, t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये हो जाए। टाइम इंटरवल हमारा है 0 से 4, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें, 2 + 1 क्या हो गया 3, ये 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी आर लेफ्ट विद हियर t³ 0 से 4। अब इसे कैसे कंप्यूट करते हैं, हम एक बार अपर लिमिट यूज करते हैं फिर लोअर लिमिट यूज करते हैं। फिर अपर लिमिट यूज करेंगे, t में 4 यूज करेंगे, ये हो जाएगा 4³ माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे 0³ 4³ क्या होता है बेटा, 4 × 16 = 64 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट। तो यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड्स वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट अंडर सच सिचुएशंस, ठीक है। तो जब भी ये सिचुएशन आएगी, ठीक है, आपको इस प्रकार से कंप्यूट करना है। तो जनरली कंपटीशन के अंदर जो एग्जाम्स आते हैं उसमें इस प्रकार से पूछते हैं, ठीक है। सीधा सीधा तो आप कर ही दोगे, सीधा सीधा आएगा मेडिकल के लिए और इस प्रकार से आएगा आपके इंजीनियरिंग के, तो इतना ही फर्क होता है, कॉन्सेप्ट दोनों में सेम लगता है, ठीक है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, किस प्रकार से यूज करना है? Yes, sir. वेरी गुड।